رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمایا. اس مہینے میں خاص طور سے قرآن پاک جو اللہ تعالی نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کے تعلق سے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے آیا ہوں. گزشتہ قرآن پاک کا پہلا پارہ الف لام میم، اس پارے کے کچھ آیات کا شان نزول وغیرہ بیان کیا گیا. آج دوسرا پارہ قرآن پاک کے دوسرا پارہ سیقول، اس پارے میں تقریباً 17 آیات اور اس کا مختصر شان نزول آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین تحویل قبلہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں. جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، کعبۃ اللہ کے پاس اس طرح نماز پڑھتے تھے، سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا. بیت المقدس جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قبلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس اس طرح نماز پڑھتے تھے، سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں یہ صورت نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. آپ کے دل میں کعبے کی طرف رخ کرنے کا داعیہ پیدا فرمایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں رخ کر کے دیکھتے تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، منافقین اور کچھ مسلمان اور یہودی کہنے لگے، انبیاء کے قبلے کو چھوڑ کر اب کعبے کا رخ کرنے لگے. کسی نے کہا کہ یہودیوں کی عداوت میں حسد سے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا تحویل قبلہ اللہ کی فرمان کے اتباع میں کیا گیا ہے، کسی کے حسد اور خواہشات سے نہیں، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے. آیت نمبر 2، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ صفا و مروہ پر پہنچ کر ان بتوں کی تعظیم میں وہاں پر کچھ مشرکانہ اعمال کیا کرتے تھے. جب اسلام آیا، اسلام میں بھی حج اور عمرہ کے اندر سعی کو ضروری قرار دیا. لیکن اس وقت لوگوں کو ایک اشکال تھا، یہ صفا مروہ کی سعی یہ تو زمانے جاہلیت کا رسم ہے، اب ہم کیوں کریں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے فرماتے ہیں نہیں،
सई भी अल्लाह का हुक्म है, इसमें जाहिलियत की कोई रस्म नहीं है। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। आयत नंबर 3, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला। ऐ वो लोग जो ईमान लेकर आए, तुम पर क़िसास भी फर्ज किया गया, यानी मक़तूल के वरसा कातिल से बदला लेना। अरब के ज़माने जाहिलियत में किसी एक शख्स का कत्ल होता तो उसके क़िसास में मक़तूल के वरसा कातिल के बहुत सारे लोगों का कत्ल कर देते थे। कबीले के कबीला लड़ाई झगड़े पर उतर आकर कई लोग उसके अंदर क़िसास में कत्ल कर देते थे। दूसरी जानिब अहले किताब जो इस क़िसास के मसले को खुद अपनी किताबों से उन्होंने मिटा दिया था। इन दोनों के दरमियान कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी इंसाफी के साथ इस्लाम का हुक्म नाजिल किया। जो मक़तूल होता है उनके वरसा को उसका हक है कि कातिल से क़िसास लें और चाहें तो कातिल से उसकी माफी भी ले सकते हैं। लेकिन ये मसला बहुत तफसील तलब है, इसके लिए क्या क्या शराइत हैं, ये सब जो है उलमा इकराम से, अइम्मा इकराम से आप मालूम कर सकते हैं। आयत नंबर 4, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और जब वो आपसे सवाल करते हैं मेरे बंदे, हमारा रब दूर है या करीब, हम उसको आहिस्ता पुकारें या जोर से, उस वक्त अल्लाह ताला इस आयत को नाजिल फरमाया। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं करीब हूं, फइन्नी करीब, मैं बहुत ज्यादा करीब हूं। इसका मफहूम है जो कुछ भी दुआ करते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वो मुझी से मांगे और दुआ की कबूलियत मुझी से चाहें। आयत नंबर 5, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम। इब्तिदा में जब रोजे फर्ज हुए उस वक्त एक शर्त ये थी, इफ्तार करने के बाद सोने से पहले जो कुछ खाना पीना मुबाशरत सारी चीजें जायज थी। अगर इफ्तार के बाद आंख लग गई फिर खाना पीना सब जो है ममनू। इस तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को बहुत सारे मुश्किलात पेश आए तो अल्लाह ताला ने फिर वहां पर आसानी पैदा की। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना, अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह किया है कि खाओ पियो सुबह सादिक तक। उसके बाद सहाबा कराम को यहाँ बड़ी आसानी हुई। इसमें बहुत सारे वाक़यात भी तफसीर के अंदर मौजूद हैं। आयत नंबर 6, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। सहाबा कराम पूछते हैं आपसे चांद के बारे में, यानी चांद जो कभी बारीक होता है, कभी उसके अंदर तब्दीली आती है, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ताला कुरान की इस आयत के जरिए से इसका जवाब देते हैं। यानी सूरज की तरह एक सा क्यों नहीं होता है? सूरज रोजाना एक ही तरीके से तुलू होता है, उसी शक्ल में गुरूब होता है, लेकिन चांद इस तरह नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए दिन के औकात सूरज से मालूम होते हैं, लेकिन तारीख और महीने का अंदाज चांद से लगाया जा सकता है। चांद को देखकर आप कह सकते हैं ये पहली रात का पहले तारीख का चांद है, ये 14वीं रात का चांद है, यानी उसके अंदर कमी बेशी होती है। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन चांद को घटाना और बढ़ाना
ये जो है लोगों को तारीख और महीने का अंदाजा लगाने के लिए अल्लाह ताला इस तरह किए हैं। खास तौर से दीन इस्लाम जो एक फितरी मजहब है, जिसके खास तौर से हज और रमजान खुसूसियत से इसी चांद की तारीख के ऊपर मौकूफ हैं, जो चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। आयत नंबर 7, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा। मिन ज़ुहूरिहा, इस आयत के अंदर वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ज़माने जाहिलियत के रस्म को बयान फरमाते हैं। ज़माने जाहिलियत में कुरैश के अलावा कोई भी एहराम बांधकर हज की नीयत से जब निकलता है, अगर कोई चीज घर में भूल जाए, उसको लेने के लिए किसी जरूरत से घर को वापस आना चाहता है, उस वक्त घर के दरवाजे से नहीं आ सकता, बल्कि दरवाजे के घर के पीछे के हिस्से से दीवार तोड़कर आना उसके लिए जरूरी था। इस तरह की गलत रस्म थी और उसको वो लोग तकवा समझते थे। ये बहुत बड़ी परहेजगारी ये लोग समझते थे। अल्लाह ताला इसका रद्द करते हुए फरमाते हैं, वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, नेकी तो वो है जो अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होगा, वैसे अमाल होंगे, वही नेकी है। इस तरह दीवार तोड़कर घर के पीछे से आना ये कोई नेकी वाला अमल नहीं है। आयत नंबर 8, वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। इसका मफ़हूम है, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो आपके पास आकर मुसलमानों के मोहब्बत का दम भरते हैं, उसकी बातें आपको भली मालूम होते हैं, लेकिन वो कमीने लोग हैं। अपने दिल की कैफियत को अल्लाह को गवाह बनाकर वो पेश करता है, गोया उसके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। मक्के मुकर्रमा के अंदर अखनस इब्न शरीक एक आदमी था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने कलाम के जरिए से मुसलमानों की मोहब्बत को दम भरता था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देता था। तो अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक की इस आयत के जरिए से वाज़ेह कर दिए हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़ाहिर में मुसलमानों की तारीफ करते हैं और उनके खैरखाही होने का इजहार करते हैं, लेकिन वही लोग मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुसलमानों को नुकसान करने की पूरी कोशिश करते हैं। आयत नंबर 9, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के रजा के लिए अपने जान को खरीद लेते हैं। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में थे और मक्के में तिजारत करके बहुत कुछ माल उन्होंने कमाया था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के अंदर लोग तकालीफ देते थे, तो उन्होंने इरादा किया मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करें। इस इरादे से सवारी पर सवार होकर मदीना निकले। रास्ते में मक्के के मुशरिकीन आकर आपको रोक लिया। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरे और कहा, मेरे पास तीर है, तीर और कमान है, मैं इसमें बहुत बड़ा माहिर हूं।
जब तक मेरे पास से तीर होंगे कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। अगर ये खत्म हो गए तो मैं तलवार से मुकाबला करूंगा। अगर आप ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं तो मेरा बहुत सारा सरमाया मक्के के अंदर है, मैं उसका पता बताता हूं, उस सरमाए को आप ले लीजिए और मुझे जो है जाने दीजिए। जब सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला इस बात पर मक्के के मुशरिकीन राजी होकर आपको छोड़कर चले गए, हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का पहुंचे, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बड़ी कामयाबी की तिजारत रही। आयत नंबर 10, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ऐ वो लोग जो ईमान लेकर आए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा मत करो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने, कुछ लोग अहले किताब थे पहले, बाद में इस्लाम कबूल किया, और अहले किताब सनीचर का हफ्ते के दिन का एहतराम करते थे, और ऊंट के गोश्त उनके ऊपर हराम था, और तौरात की तिलावत करते थे। ये तीनों चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरखास्त की, इन तीनों को हम अमल करेंगे। इस्लाम में तो कोई ममानात नहीं है। उनका मकसद ये था कि हम सनीचर की इज्जत व इकराम करके, ऊंट के गोश्त से परहेज करके और तौरात की तिलावत करके और भी हम नेकियां कमाने वाले बनेंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज भी हम गौर कर सकते हैं, जो मुसलमान इस्लाम में रहते हुए दूसरे मजाहिब के रस्म व रिवाज में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, अपने आप को सेकुलर होने का वो दम भरना चाहते हैं, ऐसे काम जो इस्लाम में इसमें मना किया गया, और जो है दूसरे मजाहिब में वो शामिल होना चाहते हैं, उसकी भी इकराम करना चाहते हैं, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर संग हो जा, ये पिघल कर मोम हो जा। आयत नंबर 11, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओ। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास ऐसे हालात और मुश्किलात नहीं आएंगे जैसे तुमसे पहले लोगों पर आए। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है कोई आसान चीज नहीं है। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़े बड़े रसूलों को, पैगंबरों को आजमाने के बाद ही जन्नत मिली है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को इस आयत में इत्मीनान दिलाया गया और हौसला दिलाया गया। आयत नंबर 11, आयत नंबर 12, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, वो आपसे पूछते हैं किस चीज का सवाल करें, किस चीज को हम खर्च करें और कहां खर्च करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, कुल फीहिमा कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। 5 लोगों का तज़किरा इस आयत में किया गया है। सबसे पहले वालिदैन पर अगर वो मोहताज हों, और दूसरे वल अक़रबीन और रिश्तेदारों पर, वल यतामा और यतीम लोगों पर, वल मसाकीन और मिस्किनों पर, वब्न सबील और मुसाफिरों पर। आयत नंबर 13, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम
قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. وہ پوچھتے ہیں آپ سے شہر حرام کے بارے میں، یعنی جن مہینوں کے اندر قتال ممنوع ہے وہ 4 مہینے ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب. یہاں پر ایک واقعہ پیش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو ایک مقام پر روانہ کیا ایک قافلے کو روکنے کے لیے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہاں پہنچے اور اس کے بعد ایک قافلے سے مقابلہ ہوا. وہاں پر ایک آدمی کا قتل ہوا. وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. اس کے بعد مکے کے مشرکین نے یہ بات لوگوں میں پھیلائی، یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو اشہر حرام کا بھی عزت نہیں کرتے ہیں بلکہ ممنوع شدہ مہینوں میں بھی قتال کرتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے بیان فرماتے ہیں، راہ خدا میں رکاوٹ کرنا، خدا کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام میں آنے والوں کے لیے رکاوٹ بننا اور اہل مکہ کو شہر بدر کرنا، یہ تمام کام اس قتال سے بھی بڑھ کر ہیں جو انجانے میں رجب کی پہلی تاریخ کو یہ قتل ہو گیا. آپ جو کرتے ہیں وہ کام اس سے بھی بڑھ کر ہے. والفتنة